گورنمنٹ کالج بسم صاحبال اللہ کے الرحمن الرحیم اولڈ اسٹوڈنٹس میں سے نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم میڈیا کی وعلی آلہ و صحبہ نامور شخصیت مجیب جناب ارمان شامی محترم صاحب پروفیسر قمر گورنمنٹ احمد پوسٹ صاحب، گریجویٹ کالج صاحبال کے جناب ڈاکٹر ممتاز المنائی احمد صاحب، فنکشن میں جناب اپنی سپیچ کرتے ہوئے عاطف محمود صاحب اور جناب عارف چودھری صاحب، سعید آصف صاحب، سجاد میر صاحب، منیر احمد خان صاحب، فیصل شہزاد صاحب، رائے حسن نواز صاحب، میجر سرور صاحب اور خواتین و حضرات، دوستوں اور ساتھیوں، بیٹیوں، بہنوں، اب بڑی عجب کیفیت ہے دل یہ ہال جو ہے اس وہاں جو اسٹیج میں ہماری بیٹیاں بیٹھی ہیں، اب برسوں پہلے 1964 کی بات ہے کہ 1964 کہ یہاں اسٹوڈنٹس یونین کے انتخابات ہونے والے تھے، تو میرے دوستوں نے میرا نام بھی پیش کر دیا۔ میر صاحب اس کو سیکنڈ ایئر میں تھے، فرسٹ ایئر میں تھا، میں تھرڈ ایئر میں۔ اب وہ اس کی شرطیں یہ تھی کہ ایکسٹرنل پوسٹ اسپیچ کرنی پڑتی تھی انگریزی میں اور اردو میں، تو وہ جو کینڈیڈیٹ ہوتے تھے پہلے ان کو کوالیفائی کرنا پڑتا تھا۔ اچھا، اب وہ کوالیفائنگ وہ ڈیبیٹ ہوئی، تو جو صاحب اس وقت بہت ممتاز کینڈیڈیٹ تھے، مطلب خیال تھا کہ یہ جیتیں گے، وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے، انہوں نے کوالیفائی نہیں کر سکے، اور کئی دوسرے دوست بھی، اور جو باقی بچے اب ان میں سے اب ظاہر ہے، تو بڑے دلچسپ انداز میں انجمن طلبہ کا صدر منتخب ہو گیا۔ اب انور صاحب جو تھے پرنسپل، اور پھر اس کے بعد کتنے انٹر کالجیٹ ڈیبیٹس ہیں جو اس ہال میں ہوئے اور میں نے ان کو پریزائڈ کیا، تو یادیں ہیں، ان کا ایک سلسلہ ہے۔ کوئی محترمہ فاطمہ جان الیکشن آ گیا صدر، اب اس سے پہلے گورنمنٹ کالج صاحبال میں تھا، یہ کچھ سویا سا کالج تھا، کوئی سیاست وغیرہ کے اثرات یہاں نہیں تھے، اور پتنی ہمارے دل سجاد میر صاحب تھے، ہمارے دوست کرنل کسبر تھا، ایک اقبال شہید ہو گئے بیچارے، وہ ایوب خان کے ہاں۔ اب ہم فاطمہ جنا کے لیے سرگرم ہو گئے، اب ملک انور صاحب میرا پریشان، اور ہم اپنے جنون میں اب ان کے ساتھ مکالمہ ہو، گفتگو ہو، ایک دن کہنے کہ لک ایٹ دا پریزیڈنٹ آف یونین، he thinks that he is the principal and I am president of the union۔ بڑا رہا اس وقت ساہیوال میں مسعود پوسوال جو تھے، بڑے نامی گرامی شخص اور بڑے زبردست وکیل، اور پھر راؤ خورشید صاحب، اور بڑے بڑے وکیل یہاں اصغر حمید صاحب اور دوسرے، اور شاعر تو پھر میر صاحب کا صوبہ تھا، اور کیا وجید امجد صاحب، منیر نیازی صاحب۔ اب آغا امجد علی صاحب اس وقت پرنسپل وہاں کے ہاسٹل کے سپرنٹینڈنٹ تھے۔ اب ہم نے تو گورنمنٹ کالج صاحبال سے جو کچھ سیکھا اور آزادی اظہار کے ساتھ اور جمہوریت کے ساتھ جو وابستگی ہوئی، تو سجاد میر صاحب الحمدللہ آج تک برقرار ہے، اور اس معاملے میں ہم آپ کو
अपने आप को यही समझते हैं कि हम गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में पढ़ रहे हैं और किसी खौफ के और लालच के बगैर अपने नुक्ता नज़र का आज़ाद करते हैं और दूसरों के नुक्ता नज़र का एहतराम करते हैं। अभी मैं हमारे दोस्त फादर दोस्त मियां मंजूर अहमद भट्टी साहब जो वो बीमार हैं, वो भी बड़ा सरगर्म रहे हमारी अलुमनाई एसोसिएशन, वो बीमार हैं, उनके लिए दुआ करें अल्लाह ताला उनको भी शिफा नसीब करें। और जैसे मुदीर करमानी साहब के लिए और हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त फजल मोहम्मद खान यहाँ के प्रेस क्लब के बानी के अखबार नवीस थे यहाँ पे, मैं तो मेरे ख्याल ईद के लगभग उनका भी इंतकाल हो गया। उस वक्त जब मैं यूनियन में था उस वक्त वो नवायदा के कॉरेस्पॉन्डेंट और वो कवरेज हमारी करते थे और खबरें छापते थे। तो बहरहाल एक गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल की एक अपनी दुनिया है। अब ये जो अलुमनाई एसोसिएशन है, हकीकत यह है कि आतिफ महमूद साहब जो हैं ये कोई गॉड गिफ्टेड शख्स हैं। ये मिले हमें और फिर डॉक्टर मुमताज़ साहब मिले और फिर ये दोनों एक दूसरे को मिले और उन्होंने ये अलुमनाई एसोसिएशन, उससे पहले भी एक जस्टिस एजाज निसार साहब की सरबराही में ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन कायम हुई थी, कुछ काम करती रही लेकिन ढीली डाली रही। और फिर हमने तलाश की तो आरिफ चौधरी साहब मिल गए, माशाल्लाह पाकिस्तान के मुमताज़ तरीन कानूनदानों में शुमार होते हैं और इनकी बातें तो आप देखिए हमसे भूल जाते हैं। उन्होंने उसके सेक्रेटरी जनरल शिप संभाली। अब ताहिर नसीम साहब जो हैं वो व्हाट्सएप के पैगाम देते हैं, वज़ीर इत्तलात हैं यहाँ हमारे ग्रुप में, और फिर शहीद आसी साहब। अब ये है कि अब यहाँ अब गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में आप देखिए मेजर सरवर साहब ये मुझे मिले लाहौर में, मियां आसिम इकबाल साहब की बेटी की शादी चंद मिनट मुलाकात, लेकिन उस मुलाकात ने मुझे हिला के रख दिया और मैं आज अभी तक उससे बाहर इनका लोता बेटा पूरे स्टार हालात में शहीद खुदा मालूम कब इंसान और कब हमें अल्लाह ताला जो है तौफीक देगा कि हम अपनी कौम को और अपने आप को इंसाफ फराहम करें। तो बड़ा राय साहब मौजूद है यहाँ, कुछ यहाँ के पढ़े हुए वज़ीर आला रहे हैं, वज़ीर रहे हैं, अभी MPs हैं, MLAs हैं। तो मेरे ये ख्याल है अगर मुझे इजाज़त दी जाए तो उन्होंने कुछ गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल से कुछ ताल्लुक का हक अदा किया। इसलिए डॉक्टर मुमताज़ साहब कहते रहते हैं कि सड़क नहीं बन रही, ये बच्चों के मामलात हैं, कॉलेज की बिल्डिंग है, अब उसको उसकी कुछ तज़ीन व आराइश है, उसको ये बहुत सारे काम हैं। जब हमने उसका बेड़ा उठाया तो एक वज़ीर आला थे, उनसे बातचीत हुई तो वो बदल गए, दूसरे आ गए, दूसरों से कोई एतमाद का रिश्ता हुआ तो वो तीसरे आ गए, अब तीसरे गए तो तीसरे वो भी चले गए, हाथ से निकल गए, अब चौथी आई है वज़ीर आला साहब, कोशिश करेंगे हैं? आपकी ख्वाहिश तो यही होगी, तेरी दुआ है कि हो तेरी आदत, मेरी दुआ है कि तेरी आदत बदल जाए। हमारा मुल्क जो है वो आगे बढ़ा सके और लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करें। और बारह राय हसन नवाज साहब, आप हमसे ये वादा करें कि अगर अब आपको मौका मिला तो फिर आप करा के निकाल देंगे, हमारे सारे मुतालबात मंजूर हैं।
तो ये आपका कॉलेज है, आप बच्चे हैं यहाँ, इस कॉलेज की बिल्डिंग है तो और तामीर भी होनी चाहिए, हॉल जो है इसकी भी रेनोवेशन होनी चाहिए, वैसा इसकी कैपेसिटी में इजाफा हो सकता है कि गैलरी बन जाएगी, तो बहुत से काम करने के हैं और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह सारे काम होंगे। अब इसको सआदत हासिल होती है, अब हो सकता है कि राय हसन नवाज साहब का इंतजार करना और हो सकता है उससे पहले कुछ ना कुछ हो। दोबारा ये मुमताज़ भट्टी साहब दिलदार इस पर लगे हुए हैं और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो भट्टी साहब हमारी एक तंजीम है कारवान जिसका मैं डॉक्टर यासिन वैकल साहब ने, हसन गफर साहब ने, हमारे नाशवी साहब ने मिलकर आई हुई। अब आजकल उसकी जिम्मेदारी मेरे पास है। तो जो बच्चे हैं जो हमने मुख्तलिफ कॉलेज के साथ MOUs किए, जो बच्चे वहाँ कॉलेज इंतज़ामिया में रेफर करें उनकी फ़ीस भी हम देते हैं, बार-बार हॉस्टल के एक्सपेंसेस भी देते हैं। तो मेरा ख्याल वो भी हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ भी मामला हो जाए और वैसे भी जो कुछ भी करना है मेरा ख्याल आप एक फहरिस्त बना लें अपने मुतालबात की। वैसे तो DPO जिसके साथ हो उसको तो कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने तो सुना है कि बड़ी ताकत होती है पुलिस के पास, आपने हमें कलम की ताकत पे तरखा दिया है। भाई आप कलम की ताकत बस इसका भरम रहने दें, अब ताकत तो बंदूक की है। अल्लाह करे और आपकी स्ट्रिक जो है वो भी कुछ कम नहीं है इससे। जिनके पास ताकत है उधर एक नज़र मोहब्बत की नज़र से देखें तो प्राइवेटली भी कई मसाइल हल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया।